Yes, good morning to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. So today we are discussing about reaction isochore, or it is also called as want of equation. Want of equation. Want of is name of scientist. So the free energy change is measure of the magnitude of equilibrium, as we have obtained expression that is a delta G naught is equal to minus RT ln Kp, where Kp is equilibrium constant. We call this as equation number 1. We have proved this equation, or we have obtained this equation yesterday. Now at any temperature, the changes of the free energy, entropy and enthalpy are related with. So that is a partial derivative of delta G with respect to T at constant pressure is equal to minus delta S, is equal to minus delta S, as we have seen this. And this is equation number 2. Now we know that is a change in Gibbs free energy is given as, yesterday we have obtained expression delta G is equal to delta H minus T into delta S. Now rearranging this equation, and from this we calculate the value of delta S. तो delta S क्या होगा इक्वेशन पर से? Delta S is equal to delta H minus delta G upon T. रीअरेंज किए इसको हमने, रीअरेंज किए, यानी माइनस टी इंटू डेल्टा एस को इधर ट्रांसफर किए हमने लेफ्ट हैंड साइड को, और डेल्टा जी को राइट हैंड साइड को ट्रांसफर किए, और जो टी है वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दैट इज डिनोमिनेटर में ली. सो देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी. नाउ फ्रॉम 2 and 3, यहाँ पे जो 2 में क्या है, दैट इज दिस इज द value of delta S. Put this value of delta S as partial derivative of delta G with respect to T at P, or from 2 and 3 we can write, देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये delta S, तो ये दोनों बराबर होंगे. So what we get, so partial derivative of delta G with respect to T at constant pressure is equal to minus delta H minus delta G upon T. Then देखिए how this equation come, that is this equation come this 2 and 3, from 2 and 3 this is the delta S, and here is the, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है with negative sign. So now rearranging this equation again, partial derivative of G with respect to T at constant pressure. Now ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और T को सेपरेट लिखिए आप, माइनस डेल्टा H अपॉन T, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस डेल्टा जी अपॉन टी, यानी टी सेपरेट लिखे हमने, डेल्टा एच के साथ भी टी लिए हैं और डेल्टा जी के साथ भी टी लिए हैं. ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर अगेन रीअरेंजिंग, ये जो डेल्टा जी अपॉन टी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, ये माइनस होगा, तो देखिए वही यहाँ पे बताए हुए partial derivative of delta G with respect to T at constant pressure माइनस डेल्टा जी अपॉन टी. ये राइट हैंड साइड में था तो उसको हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लिए, वहां पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव होगा. ओके, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. नाउ अगेन रीअरेंजिंग दिस, दैट इज दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, सो वी कैन राइट टी इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी, partial derivative of delta G with respect to T upon T is equal to minus, that is delta H upon T. Now what is the value of delta G naught from equation 1? Delta G naught is equal to minus RT ln Kp, minus RT ln Kp. तो यहाँ पे जो इक्वेशन 4 में डेल्टा G naught है उसके जगह रखिए आप minus RT ln Kp. So above equation becomes T into partial derivative of minus RT ln Kp divided by T with respect to T is equal to, that is minus delta H upon T. Now again, that is take R as that is R is constant, so take outside the derivative. So minus T, ये minus sign भी हमने outside the bracket लिया है, minus T, और ये R, and this is nothing but the partial derivative of ln Kp upon
that is with respect to t at constant pressure is equal to minus delta h upon t. अब क्या कीजिए, देखिए दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये r को नीचे ट्रांसफर कीजिए राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, और ये t, दिस t एंड दिस t into t, that is t square, or this minus and this minus get plus, this minus and this minus get plus. So what remains the final equation? Therefore that is the partial derivative of ln kp with respect to t is equal to delta h upon rt square. Okay. So this is equation number 5, and this equation number 5 is called as want of equation. This equation number 5 is called as want of equation. Now according to this equation, a rate of change of equilibrium constant. So what is equation 5? See, the kp means what? Equilibrium constant, and it is partial derivative with respect to 2. So it is the rate of change of equilibrium constant is equal to, इसके बराबर है r is constant, t is constant, and delta h यानी क्या? Enthalpy. So it is according to this equation, rate of change of equilibrium constant with temperature depends on the standard enthalpy. It depends because delta h is the standard enthalpy change. Now integrating above equation, integration करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो गेट कैंसल, व्हाट रिमेन्स? ln kp remains. So ln kp is equal to delta h upon rt plus constant plus integration का constant. Now if ln kp is plotted against 1 upon t, ln kp is plotted against 1 upon t, a straight line with negative slope corresponding to delta h upon 2.303 r is obtained. यानी ln kp और 1 upon t इन दोनों के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, that is on one axis x axis ln kp, on y axis 1 upon t, then a straight line is obtained और उसका स्लोप कितना रहेगा? डेल्टा एच अपॉन 2.303. अंडरस्टैंड? देखिए अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ln kp वर्सेस अब 1 अपॉन t हमने क्या किए हैं? प्लॉट किए हैं ग्राफ. तो इसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे? कौन सी क्वांटिटी रहेगी इसमें? डेल्टा एच, और ln है इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे. ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या है? दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303. तो डेल्टा एच अपॉन 2.303 और ये r. अंडरस्टैंड? So from any equation we can obtain the slope. The equation is called as want of reaction isotope. Want of reaction isotope. Now integrating this equation 5, between the limit kp1 to kp2 at t1 and t2. Equation 5 को rearrange किए. What is equation 5? See, this is equation 5. Equation 5 इसको rearrange करें कैसा? ये पार्शियल डेरिवेटिव टी को यहाँ पे लीजिए आप, दैट इज राइट हैंड साइड में. तो इक्वेशन 5 क्या होगा? देखिए, पर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ln kp इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन rt स्क्वायर. तो एज इट इज है, और यहाँ पे जो विथ रिस्पेक्ट टू टी था इसको हमने क्या किया? राइट हैंड साइड में किया, यानी इक्वेशन 5 को रीअरेंज किए. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स. अब इसके लिमिट्स क्या होंगे? kp है तो kp1 to kp2, kp is the equilibrium constant, और राइट हैंड साइड में लिमिट्स क्या होंगे? विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो t1 to t2. सो इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स kp1 to kp2 and t1 to t2, then what we get? This is derivative and this is integration. और जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक जगह आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो रहेगा क्या? ln kp रहेगा, ln kp, दैट इज ln kp, और इसके लिमिट्स क्या रहेंगे? ln kp1 to ln kp2 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r, दैट इज कांस्टेंट है. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन t स्क्वायर, 1 अपॉन t स्क्वायर. क्या होगा 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन? yes, can anybody tell me the integration of 1 upon t square? yes, 1 upon t square का इंटीग्रेशन 1 upon t square minus 1 upon t, remember, minus 1 upon t. So integration of that is
1 upon t square is minus 1 upon t. And what are the limits? T1 to T2. T1 to T2. Now put upper limit and lower limit. ln upper limit क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में kp2 ln kp2 minus ln kp1 upper limit minus lower limit is equal to delta h upon r. Now put upper limit minus 1 upon t2 minus 1 upon t1 और इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा log m माइनस log n यानी ln kp2 अपॉन kp1 इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r और इसको पॉजिटिव क्वांटिटी ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा सो 1 अपॉन t1 minus 1 upon t2. So what is the final equation? That is ln kp2 upon kp1 is equal to delta h upon r in bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. Now ln kp2 is kp2 upon kp1 is equal to same equation, that is delta h upon r in bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. अब ln को log में कन्वर्ट करना है, we have to convert this ln to log. तो क्या रूल है उसका, ln को log में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना और बाद में ये नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में जाएगा. तो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? log of that is a kp2 upon kp1 is equal to delta h upon 2.303 r. क्योंकि ln को log में कन्वर्ट किया हमने तो कितने से मल्टीप्लाई किया 2.303 से मल्टीप्लाई किया 2.03 से मल्टीप्लाई किए. सो we have multiplied by 2.303. So what is the final equation? Log of kp2 upon kp1 is equal to delta h upon 2.303 r into bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. It is equation number 7. And this equation 7 is called as, that is an integrated form of want of equation. Want of equation. So this is about the want of equation. अगर theoretical exam रहता तो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन always ask obtain want of equation. बट आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये दो इक्वेशन याद रखिए. इक्वेशन 5 क्या है? इक्वेशन 5 आपको इक्वेशन देंगे और इसमें से want of equation कौन सा है पहचानिए, ऐसा पूछेंगे आपको. बाकी का तो इंटीग्रेटिंग पार्ट डेरिवेटिव पार्ट आपको नहीं है क्योंकि लिखना नहीं है आपको. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 इक्वेशन देंगे और उसमें से want of equation कौन सा है, which of the following is want of equation, ऐसा क्वेश्चन आएगा. तो आपको this is the want of equation, that is partial derivative of ln kp with respect to t is equal to delta h upon rt square. This is want of equation. ये आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में. identify the want of equation. इसमें से want of equation कौन सा है? So equation 5, remember ये equation 5 को want of equation कहते हैं. 4 इक्वेशन देंगे इसमें से 1 रहेगा करेक्ट. देन दैट इज व्हिच इज द इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ये इक्वेशन देंगे आपको, इंटीग्रेटिंग फॉर्म कौन सा है वांट ऑफ इक्वेशन का. इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन. सो लॉग ऑफ kp2 अपॉन kp1 is equal to delta h upon 2.303 r into bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. And this equation 7 is called as integrated form. देखिए equation 5 is general form of want of equation, and equation 7 is integrated form of, that is want of equation. So these two equations are important. एक ही equation है but एक integrated form है और एक क्या है general equation. एक जनरल इक्वेशन that is want of equation and next is integrated form of want of equation. So this is regarding the want of equation. This is regarding the want of equation. Remember only equation. ये small topic, इस पे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आते हैं. मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें. लास्ट ईयर 5 ऑब्जेक्टिव आए थे इस पे और इससे पहले 1-2 तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आपको किस तरह से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो जनरली रहता ही है. इक्वेशन देंगे आपको, उसका केसी मालूम करना है. हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम मींस केसी डायरेक्टली किस तरह से मालूम करेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इफ जनरल इक्वेशन a plus b gives c plus d is given. So this is the want of equation. Now next is
क्लैप्रियन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ का ये जो टॉपिक है इट इज प्योरली मैथमेटिकल पार्ट, पूरे इक्वेशंस ही हैं इसमें। सो वांट ऑफ इक्वेशन के बाद जो अगला इक्वेशन है क्लैप्रियन इक्वेशन। Clapeyron is name of scientist. He has obtained this equation. So the name is given Clapeyron. So this equation is related with two-phase system. Two-phase system means what? That is two phases are in equilibrium. Two phases means solid, liquid, gases में से दो फेज लेना है। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर और सॉलिड liquid, etc. So these are the, that is two phases are in equilibrium. Now for two phase system we already obtained, that is a change in Gibbs free energy dg is equal to minus sdt plus vdp. ये हमारा हुआ है थर्मोडायनेमिक सेकेंड में, वहां से ये इक्वेशन हमने लिए हैं dg is equal to that is minus sdt plus vdp. ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है और एक कांस्टेंट प्रेशर है। व्हेन t and p are independent variable, वहां पर ये इक्वेशन हमने यूज किए हैं। सो नाउ द इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी dt इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट प्रेशर यानी dp इज इक्वल टू 0। तो dg की वैल्यू क्या होगी, देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है, dt इज इक्वल टू 0, dt इज इक्वल टू 0 और dp इज इक्वल टू 0 रखना है। तो dg की वैल्यू क्या होगी, यस dt इज इक्वल टू 0 और dp इज इक्वल टू 0, बोलिए 0। यस करेक्ट, इट बिकम 0। तो यहाँ पे लिखे हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर dt इज इक्वल टू 0 एंड dp इज इक्वल टू 0। जो ऊपर का इक्वेशन 1 हमने कहा है उस इक्वेशन में dt की वैल्यू 0 रखिए और dp की वैल्यू भी 0 रखिए, देयरफॉर dg इज इक्वल टू 0। और डेल्टा जी किस तरह से लिखते हैं आप, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, यानी G2 माइनस G1, और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई है 0। इस पर से G2 माइनस G1 इज इक्वल टू 0, G2 माइनस G1, इस पर से क्या लिख सकती है, G1 को उधर ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा is equal to G1, yes G2 is equal to G1, understand? Equation 2, this is equation. Now consider that two phases are in equilibrium. हमने देखे two phases यानी लिक्विड वेपर, सॉलिड गैस, दो फेजेस लेना है। जो तीन स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसमें से दो स्टेट लेना है। कंसिडर दैट two phases are in equilibrium and the pressure of the system is changed to dp, प्रेशर चेंज किया गया है dp से, then it implies that temperature of the system also changes by dt, टेम्परेचर भी चेंज होगा dt से। then equation 2 can be written as, देखिए G2 is equal to G1, तो डेरिवेटिव के फॉर्म की इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, यस डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना इक्वेशन 2, कैसे लिखेंगे इसे, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेना है, मैथ्स वाले बोलिए, मैथ्स इक्वेशन 2 डेरिवेटिव सिंबल, डेरिवेटिव के लिए क्या लिखते हैं, dt, करेक्ट dt। तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे क्या है, फ्री एनर्जी है तो dg लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आगे आएगा, therefore equation 2 can be, that is equation 2 can be written as, इक्वेशन 2 dg2, देखिए G2 इज इक्वल टू G1, उसका डेरिवेटिव लिया हमने, तो क्या होगा dg2 इज इक्वल टू dg1, dg2 इज इक्वल टू dg1, dg2 इज इक्वल टू dg1, dg2 इज इक्वल टू dg1। ओके, अब स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 क्या था, dg इज इक्वल टू sdt प्लस vdp, देखिए इक्वेशन 1, तो यहाँ पे G2 क्या होगा, इक्वेशन dg2 क्या होगा, s2 dt प्लस v2 dp, और dg1 क्या होगा, सफिक्स 1 लेना है, s1 माइनस s1 dt प्लस v1 dp, वही लिखा देखिए यहाँ पर, therefore dg2 is equal to dg1, therefore dg2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस s2 dt प्लस v2 dp,
ये कहां से लिए? इक्वेशन 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 इज द डीजी है और हमें चाहिए डीजी1, यानी ये इक्वेशन इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में। S1 एंट्रोपी होगी इनिशियल स्टेट की और V1 वॉल्यूम होगा इनिशियल स्टेट का, और dg2 लेना है तो S2 एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट एंड V1 लेंगे तो वॉल्यूम इन, दैट इज V2 लेना है आप फाइनल स्टेट की में, दैट इज वॉल्यूम इन, वही यहाँ पे लिखा है, दैट इज dg2 इज इक्वल टू dg1, इक्वेशन 3 है। बट dg2 की वैल्यू क्या है? माइनस S2 dt। इक्वेशन 1 में क्या था? माइनस एस डी टी था, लेकिन ये फाइनल स्टेट के G2 के लिए है, इसलिए माइनस S2 dt प्लस V2 dp, वहां पे V dp था इक्वेशन 1 में, तो V के जगह V2 लिया आपने। देयरफॉर dg2 के लिए फाइनल इक्वेशन क्या होगा? dg2 इज इक्वल टू माइनस S2 dt प्लस V2 dt, और dg1 के लिए क्या होगा? माइनस S1 dt प्लस V1 dt। दिस इज इक्वेशन 4। अब सी इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन सॉरी 3 एंड ये दोनों को मिला के 4, ये पुट द वैल्यूज ऑफ dg1 एंड dg2 इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 एंड 3। तो dg2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? dg2 is equal to dg1, therefore that is left hand sides are same, then right hand sides are equal, or put the values of this dg2 and dg1 in equation 3। dg2 क्या है? ये माइनस S2 dt प्लस V2 dt, V2 dp is equal to dg1 क्या है? माइनस S1 dt, माइनस S1 dt प्लस V1 dp। नाउ V1 और V2 एक जगह लीजिए, आप क्या कीजिए, ये V1 विद ट्रांसफर, ये V2 एज इट इज, V2 dp और V1 dp, इसमें कॉमन क्या है बताइए? V2 dp और V1 dp, इसमें dp कॉमन है, तो dp dp हमने dp V2 एज इट इज। अब ये V1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड के आने के बाद क्या होगा? माइनस होगा, तो क्या होगा? V2 माइनस V1 इंटू dp। देखिए समझ में आ रहा है क्या? ये V2 dp देखिए दूसरी जो क्वांटिटी है या दूसरा जो वैल्यूज है, और फोर्थ वैल्यूज ये V2 है और ये V1 है, तो ये V2 एज इट इज रखे आपने, और ये V1 जो राइट हैंड साइड में है उसको ट्रांसफर करें हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस होगा, और दोनों में क्या है? dp कॉमन है, dp इसलिए dp हमने इसके ब्रैकेट के बाहर लिखे, सो V2 माइनस V1 इंटू dp इज इक्वल टू, अब ये माइनस S2 है, उसको तो ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा? प्लस, अब ये S2 dt और S1 dt, इन दोनों में कॉमन क्या है? S2 dt और S1 dt, dd एस डी टी, करेक्ट, dt इज कॉमन, तो मैंने पहले डायरेक्टली कॉमन निकाला हूं। अब ये S2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, तो ये S2, और ये माइनस S1 तो ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, तो S2 माइनस S1 इंटू dt। अब देखिए V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप? चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V इंटू dp इज इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा S इंटू dt, अंडरस्टैंड? सो therefore delta V into dp is equal to delta S into dt। now rearranging this term, dp upon dt लीजिए, ये dt को इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये डेल्टा S एज इट इज, और डेल्टा V को इधर ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा फाइनल इक्वेशन? dp अपॉन dt, रीअरेंज किए ऊपर के इक्वेशन को, सिर्फ हमने रीअरेंज किए, दैट इज dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V, and we call this equation number 5। but we know that Gibbs free energy change G is equal to H minus Ts, और G1 G2 करके हमने कल मालूम किए थे फाइनल इक्वेशन, तो फाइनल दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T into डेल्टा S, डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T into डेल्टा S। now एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, रिमेंबर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम? सो
डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, पूछा हुआ है, रिमेंबर दैट। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी 0 इन दिस इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, ये अभी जो बताया था मैंने, दैट इज इक्वेशन दिस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो 0 रखी, तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये बताया यहाँ पर, देखिए 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इस पर से डेल्टा एस की वैल्यू मालूम करो, ये टी इंटू डेल्टा से इधर ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस से इधर जाने के बाद प्लस होगा, टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। देयरफॉर डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन, ये टी को नीचे लीजिए, डेल्टा एच अपॉन टी। दिस इज इक्वेशन 6। नाउ इक्वेशन 5 क्या है, देखिए इक्वेशन 5, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा v। अभी हमने इक्वेशन 6 से किसकी वैल्यू मालूम की, डेल्टा एस की, वो डेल्टा एस की वैल्यू जो इक्वेशन 6 से मालूम किया आपने, यहाँ पे इक्वेशन 5 में रखेंगे। सो पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 6 में डेल्टा एस की वैल्यू है, और वो डेल्टा एस की वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वेशन 5 में रखना है। तो इक्वेशन 5 बिकम्स dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा एस था यहाँ पे, डेल्टा एस किसके बराबर है, डेल्टा एच अपॉन टी। एंड दिस इक्वेशन 7 इज कॉल्ड एज Clapeyron equation. This equation is called as Clapeyron equation, which can be integrated assuming delta h and delta v constant. ये Clapeyron equation, देखिए इसमें दो इक्वेशन है, एक तो Clapeyron equation है और एक है Clausius-Clapeyron equation। अगला जो है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे Clausius-Clapeyron equation। तो दो कंफ्यूज मत हो, Clapeyron equation इज सेपरेट और Clausius-Clapeyron, Clapeyron मींस सिर्फ Clapeyron ने ये इक्वेशन ऑब्टेन किया, तो इट इज कॉल्ड एज Clapeyron इक्वेशन। और जो दूसरा है Clausius-Clapeyron इक्वेशन, Clausius नामी साइंसदान है और दूसरा एक है Clapeyron, इन दोनों ने इक्वेशन ऑब्टेन की, दैट इज कॉल्ड एज द Clausius-Clapeyron इक्वेशन, एंड दिस इज ओनली Clapeyron इक्वेशन, इक्वेशन 7। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये जनरल जैसा कि वांट ऑफ इक्वेशन 5 और 7 देखे थे हमने, एक तो जनरल वांट ऑफ इक्वेशन, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा, इसमें आपको इक्वेशन पूछेगा, Clapeyron इक्वेशन कौन सा है, Clausius-Clapeyron इक्वेशन कौन सा है, वांट ऑफ इक्वेशन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी ये ऑब्टेन करने के 10 मार्क के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। सो इक्वेशन 7 का इंटीग्रेशन करना है, देखिए। सो दिस इक्वेशन 7 इज नोन एज Clapeyron इक्वेशन। जो इक्वेशन 7 अभी देखे हमने, दैट इज इक्वेशन 7 इज कॉल्ड एज Clapeyron इक्वेशन। दिस इक्वेशन 7 इज कॉल्ड एज Clapeyron इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेशन करना है इसका। So this equation 7 is called as Clapeyron equation, which can be integrated assuming delta h and delta v constant. So this is again we have to write Clapeyron equation, dp upon dt is equal to delta h upon t into delta v. Now rearrange करो, ये dt को क्या करो, इधर ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, dp is equal to delta h upon delta v into dt upon t। rearrange करके लिखे, बाकी कुछ नहीं किए इसमें, अंडरस्टैंड। इंटीग्रेशन dp और dt, तो इसके लिमिट क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट क्या होंगे इसके, विथ रिस्पेक्ट टू dp है लेफ्ट हैंड साइड में, यस, विथ रिस्पेक्ट टू dp, p यानी प्रेशर, तो p1 टू p2 रहेगा, और राइट हैंड साइड में dt है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, तो लिमिट क्या होंगे, t1 टू t2। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज बिटवीन द लिमिट p1 टू p2 एंड t1 टू t2। अब p1 टू p2 क्या होंगे, p1 टू p2 इंटू dp इज इक्वल टू डेल्टा h और डेल्टा v कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, और इन वहां इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt और लिमिट्स आर t1 टू t2। ओके, तो dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, d मींस डेरिवेटिव और दिस इंटीग्रेशन, और यू नो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब एक जगह आते हैं तो दे गेट कैंसल, तो क्या रहेगा, सिर्फ dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन और d मींस डेरिवेटिव, और किसका है, p का, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब आएंगे तो दे गेट कैंसल, यस। तो रहेगा क्या, dp का इंटीग्रेशन, d मींस डेरिवेटिव एंड दिस इंटीग्रेशन, ओनली p रहेगा, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये d कैंसल होगा और ये इंटीग्रेशन भी कैंसल होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन और d मींस डेरिवेटिव,
और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब एक जगह आते हैं तो दे गेट कैंसल, तो p रहेगा और उसके लिमिट क्या होंगे, p1 टू p2 डेल्टा एच अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कल बताया था मैंने, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x log x, log x, करेक्ट log करेक्ट। सो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू ln, हमने ln लिखे हैं, ln एक लॉग की शक्ल है, और ये डिफरेंस इतना है कि ln को जब लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। सो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी इंटू ln t या log t, अंडरस्टैंड, ln t, और इसके लिमिट्स क्या है, t1 टू t2, देयरफॉर पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स, p2 माइनस p1, अपर लिमिट क्या है इसमें p2 है तो पहले p2 लिखेंगे, रूल क्या है, पुट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, p2 माइनस p1 इज इक्वल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी, यहां पर भी अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ln t2 माइनस ln t1, ln t2 माइनस ln t1। अब ये ln t2 माइनस ln t1 को कैसा लिख सकते हैं आप, log m माइनस log n, कल बताया था मैंने, यस, log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ log n m upon n एस, करेक्ट, m अपॉन n, तो यहाँ पे कैसा होगा, ln t2 माइनस ln t1 के जगह क्या आएगा, अगले स्टेप में ln t2 बाय t1 या t2 डिवाइडेड बाय t1, वही आएगा अगले स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे बताया हो, दैट इज t2 माइनस p1 तो एज इट इज है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी एज इट इज है, ln t2 बाय t1, क्योंकि ln t2 माइनस t1 था तो उसको हमने ln t1 बाय t1, and this p2 minus p1 is equal to delta h upon delta v ln t2 upon t1, and this is equation 8, and this equation 8 is called as integrated form of Clapeyron equation, integrated form, ये equation देंगे, and which is the integrated form of Clapeyron equation, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, that is, so आज हमने दो इक्वेशन देखिए, डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं रखा तो चलेगा, लेकिन इक्वेशंस याद रखिए, want of equation याद रखिए, integrated form of want of equation, then Clapeyron equation, and that is Clausius integrated form of Clapeyron equation, और एक लास्ट इक्वेशन है वो हम कल नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, that is the Clausius Clapeyron equation, Clausius Clapeyron equation और ली चैटलियस प्रिंसिपल, ये दो बीट रह गए हमारे, 10-10 15-15 मिनट के हैं, तो इन द नेक्स्ट पीरियड ओनली वन पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अवर सिलेबस, तो क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन और ली चैटलियस प्रिंसिपल, सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी सी दैट इज क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन, ओके। और जिन लोगों के बैक प्रैक्टिकल देखिए, मतलब जो लास्ट टाइम प्रैक्टिकल नहीं दिए थे फर्स्ट ईयर में वगैरह, तो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आई भी है, आप लोगों के नहीं है, आप लोग सब समझ रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल है, आपके प्रैक्टिकल जो रेगुलर हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम बाद में होते हैं, अंडरस्टैंड, 4th सेमेस्टर के पहले आपके एग्जाम होंगे, 4th सेमेस्टर के पहले, ओके, we will stop here because there is a practical of third year, practical discuss in the next period.